Okay, Neeraj, so now I'm going to start your technical snap for Haryana Public Service Commission under Panchayati Raj, and you are President of material for today's interview. Yes, sir. So, first of all, tell me, what is Young's modulus? Sir, Young's modulus of elasticity is the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain. Okay, so this is called Young's modulus. So, let's suppose if you have two material, correct? Yes, sir. One is rubber and another one is steel. So, now Yes, sir. tell me which metal is more elastic? Sir, in actual, the steel is more elastic. This modulus of elasticity depicts about how much that material is elastic or not. For example, in the rubber, if we apply the force, the elongation is more, and the load carrying capacity, we can say the as load stress per unit strain. It's Young's modulus of elasticity is the slope of stress strain curve. So if now tell me, yes, tell me. If the Young's modulus of elasticity of a material is more, then we can say that that material is more elastic than other material. Okay. So now suppose you have a concrete mixture. Yes, correct? Sir. Yes, sir. So, and you have a metal, mild steel. So which metal is more elastic? Can you draw a stress strain curve in same plot for both the materials? Yes, sir, I can. Yes, draw and show me. Okay. Sir, above one is the stress strain curve for the steel, and the bottom one is for the concrete. As we can see that. You can draw in same plot first. Okay, sir. Sir. Okay, very good. Okay, so explain this curve with each important points. Correct? Yes, sir. Explain both the curves with suitable important points. And sir, as we can, yes, sir, as we can see that in the mild steel, maximum points are visible. That's why we are plotting this for understanding purpose. In the mild steel, first point is the proportional limit, up to which the stress and strain are directly proportional, and after that, some about on the top we have elastic point up to which the material can regain its original position if we stretch the steel up to that point. Then after elastic point, we have yield point, upper yield point, and lower yield point. And after lower yield point, we have the carbon slippage in between the molecules of the steel. Then again, the stress increases up to the ultimate strength. And then after that, the fracture point is coming, at which our steel get into the two pieces. Okay, so let's suppose if you have a bar which is subjected to an axial tensile load. Yes, sir. Correct? And yes, sir. this bar is made up of ductile material. So now tell me from which plane it gets failed. It's a ductile material, sir. Ductile material can it is observed that cup and cone failure is observed in the ductile material. So at 45 degree it will fail. 45 degree. Okay. Yes, and if it is subjected to a pure torsion, then
and Then the sir, material is remains same. If bar is subjected to pure torsion yes sir. and the material is remains same, then from which plane it get failed? Um, sorry sir, I'm not able to recall the answer for this question. So Can then I why guess, sir? you then how you can give your answer in the previous question if you don't know the concept? So Actually, we have, you just remember that concept or that answer only. yes sir. Cup and cone failure takes place in circular bar, but I am giving you a rectangular bar. Then how you can give the answer? It feels like a cup and cone failure. हम्म मैंने आपको रेक्टेंगुलर बार का क्वेश्चन दिया था ना, Yes और sir. आपने बोला सर कप एंड कोन फेलियर होगा, बट रेक्टेंगुलर बार में कोई कप एंड कोन नहीं बनता है। So, हम्म तो फिर sir, I'm not able अच्छा to recall the, अच्छा एक बात बताओ, प्योर टॉर्शन लग रहा है तो स्ट्रेस कौन सी आएगी? sir, torsion लगा तो total stresses आएंगे sir. और you can शेयर see the स्ट्रेस shear आएगा, stresses. Shear stress आएगा. ठीक है। Yes sir. और डक्टाइल मटेरियल वीक किस में होता है? Ductile sir shear में weak होता है sir. अच्छा स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करो प्योर टॉर्शन के केस में। Sir, sir repeat करना sir एक बार. जो अब मैंने क्वेश्चन दिया था ना कि एक बार है उसमें प्योर टॉर्शन लग रहा है, तो उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कैसे बनेगा? बोलो बंधु। सर स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब समझा नहीं सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर. एक वो बनाते हैं ना, एक प्लेन 2D प्लेन बनाते हैं, फिर उसको बताते हैं इधर सिग्मा एक्स लग रहा है, इधर सिग्मा वाई लग रहा है, इधर टाउ लग रहा है, ऐसा कुछ बनाते हैं इस राइट, ओके सर. जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ ठीक है, अब बताओ टाउ, ये डक्टाइल मटेरियल है तो शियर से फेल होगा, तो टाउ का फॉर्मूला क्या होता है ऑब्लिक प्लेन के लिए? सर shear स्ट्रेस का ओब्लिक प्लेन के लिए सर, सर हम मोहर सर्कल से में सर मैक्सिमम shear स्ट्रेस is on the y axis, it's the sigma 1 minus sigma 2 by 2. हेलो. हेलो. हेलो। हाँ जी सर. हाँ टाउ का फॉर्मूला मैंने बताया ना, सिग्मा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है कभी? ये सर पढ़ा है सर प्रिंसिपल स्ट्रेस में. तो जो आपने स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करी है उसमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई लग रहा है क्या? नहीं सर उसमें नहीं है सर.
क्या लग रहा है सिर्फ? सिर्फ shear stress लग रहा है सर। तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा? टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। यस सर। तो टाउ टाउ मैक्स कब बनेगा? सर टाउ टाउ मैक्स बनेगा सर जब साइन 0 डिग्री होगा, वन साइन सॉरी जीरो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा सर। तो साइन टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है मान लो। तो यस टू सर। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री। यस सर, थीटा 45 डिग्री हो गया। तो 45 डिग्री से फेल होगा ना। यस सर। और साइन नहीं था उसमें, कॉस था। साइन कहाँ से लिखो? टाउ एक्स बाई कॉस थीटा, कॉस टू थीटा है। हम्म। बोलो। सर फॉर्मूला नहीं कोस, लिखे हो? नहीं सर फॉर्मूला मुझे फॉर्मूला अभी रिमेम्बर नहीं था। तो लिखो, तो मैं बता तो रहा हूँ। अभी नहीं ओके सर। समझोगे तो बाद में भी नहीं दे पाओगे आंसर। ओके लिखो सर। टाउ इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा यस सर। प्लस प्लस टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। यस सर। लिख लिए? यस सर। पक्का? अब देखो पक्का यहाँ पे सर। सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जीरो हो गया, तो टाउ का फॉर्मूला क्या बन गया? टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। यस सर। और कॉस टू थीटा वन होगा तभी तो टाउ टाउ मैक्स होगा। बिल्कुल सर। और कॉस टू थीटा वन कब होता है? जब आपका टू थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो। यस सर। तो थीटा थीटा इज क्या इक्वल टू आएगा? 0 आएगा सर। उसका मतलब क्या है कि जिस प्लेन में लोड लग रहा है उसी प्लेन से फेल होगा। बिल्कुल सर। और तो यहीं सर पे ये था अगर सर 90, हाँ 90 मतलब 0 डिग्री सर। होगा ना आंसर। सर ये 0 डिग्री मतलब सर अगर ये रोड है तो ऐसे ही फेल हुआ ना सर। हाँ तो यही प्लेन हुआ, यहीं से तो फेल होगा। ओके सर। एक चौक ले आना, उसको ट्विस्ट करके देख लेना, यस सर। पता चल जाएगा कैसे फेल होगा। ठीक है। अब यहाँ यस पे सर। एक्सेल लोड लगा दो तो क्या होगा? सर एक्शियल लोड लगाएंगे सर। तो आ, शेयर में फेल होगा। फिर से ये- डक्टाइल है तो शेयर में फेल होगा। बिल्कुल सर, शियर स्ट्रेंथ लेस होती है सर एक्शियल से। इसमें क्या होगा? तो माइनस ऑफ सिग्मा एक्स बाई टू साइन टू थीटा होगा। बिल्कुल सर। सिग्मा बाई टू जीरो है। यस सर। तो टाउ टाउ मैक्स अब कब होगा? जब साइन टू थीटा क्या हो जाए? वन। बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो थीटा क्या होगा? 45 डिग्री। यस सर। तो समझ में आ रहा है कि 45 डिग्री से क्यों प्लेन, 45 डिग्री वाले प्लेन से क्यों फेल होगा? एक्सियल बार, यस सर। एक्सियल लोड की वजह से। आपने आंसर दिया ठीक था है ना सर। कि सर 45 डिग्री से फेल होगा। यस सर। तो समझ में आया क्यों 45 डिग्री से फेल होगा? हम्म। बोलो। नहीं सर, समझ में नहीं आया सर। टाउ का फॉर्मूला लिखे हो? लिखे हैं सर, लिखे हैं। अच्छा एक बार बनाओ, पहले एक बार बनाओ। हाँ जी सर, बना ली। उसमें एक्सियल लोड लगा दो। ठीक है सर। तो इसमें सिग्मा एक्स आएगा, ये मान लो सिग्मा एक्स है, इसकी वजह से स्ट्रेस आएगी। ओके सर। ठीक है। और कोई ठीक है स्ट्रेस सर। लग रही है क्या? अभी तो नहीं लग रही है सर, अभी सिग्मा एक्सी लग रही है। अब ये मान लो डक्टाइल मटेरियल है। ओके सर। तो डक्टाइल मटेरियल किस में वीक होता है? शियर में। शेयर में वीक होता है। तो शियर का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू साइन। थीटा प्लस टाउ एक्स बाई कॉस टू थीटा। यस सर। ठीक है। यस सर। इसमें फॉर्मूला वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? तो तो टाउ इज टाउ इक्वल एक्स टू वाली। माइनस ऑफ सिग्मा बाई टू, टाउ इज इक्वल अच्छा टू सर, आप माइनस आ गया सिग्मा सर एक्स बाई समझा। टू यस सर, ठीक है। साइन टू समझ थीटा गया सर। आएगा। यस सर। यस सर। अब ये ब्रिटल मटेरियल होता है तो बताओ कहाँ से फेल होगा? अब सर ब्रिटल मटेरियल होगा तर ये सर, ये फिर ब्रिटल का सर शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा होता है तो एक्सियल में फेल होगा सर। वो 45 पे होगा फिर। नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखो, सिग्मा एन फॉर्मूला क्या होता सिंग क्या होता है सर? है? मेरे से वो पूछो वाला है, मुझे इंटरव्यू देना है, तुम्हें देना है। क्या? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 समथिंग लाइक दैट। लिखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू यस सर। प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू यस सर। कॉस टू थीटा और 2 थीटा। प्लस
plus tau x by sin 2 थीटा। sin 2 theta. अब दोनों के लिए आंसर दो। पहले बार बार जब एक्सेल लोड लग रहा है और ब्रिटल मटेरियल का है, अब बताओ कहाँ से Yes, sir. फेल होगा, पता करके बताओ। Load लग रहा है। सर एक्सियल लोड में तो 0 डिग्री पे फेल होगा सर ये। एक्सेल में 0 डिग्री होगा। यस सर, cos 2 ठीक थीटा है, इज इक्वल टू सर। और चलो सर मान अगर लेते हैं शेयर लग रहा है तो सर ये फिर 90 डिग्री पे होगा। 45 डिग्री ब्लैक। हाँ सर 45 डिग्री पे। अब ठीक है, तो इसका आंसर दो ना, घबराते क्यों, पहले बताओ। यस सर। अब समझ में आया ना। यस सर। और चलो ठीक है। अच्छा, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है बताओ। सर स्लेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द least radius of gyration. It actually slenderness ratio shows the our column is small, medium, or of large height. You can say. अच्छा, Yes sir. ओके। अच्छा, कोर आपने पढ़ा है, व्हाट इज कोर इन कॉलम। सर कोर कर्ण कर्ण पढ़ा है सर, KERN कर्ण। हाँ, कर्ण बता दो। Actually sir, kern sir is the area in the column, cross section of the column. If we apply the load on that in that zone, then there will be not that column will not subjected to the movement, or we can say that movement is allowed in that area. Yes sir. Eccentricity is allowed. Yes sir, eccentricity in that area. Kernel is a region up to which if you apply a centric load under that region, then your column does not buckle Yes or sir. column does not subjected to any tensile load. Correct? Yes sir. Yeah, correct sir. Okay. And what is beam? क्या sir? Beam क्या है? Beam. Actually beam is a sir horizontal member which carries the lateral loads. अच्छा, prop cantilever beam क्या है? It's a cantilever beam which is which is also supported with a roller or a pin from the free end also. Okay. What is shear force release? Sure, shear force at any section is the summation of all the vertical forces which are coming on either side of the section. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, shear force release क्या होता है? I'm not asking what is shear force. Shear force release sir. सर इंटरनल हिंज लगा के सर बेंडिंग मोमेंट तो रिलीज हो जाता है सर, ये shear force रिलीज कैसे होगा सर? shear force भी रिलीज होगा, करो तो सही। सर रोलर स्लाइडर लगा के हो जाएगा सर। स्लाइडर? यस सर। हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? सर वर्टिकल स्लाइडर लगेगा सर। चलो यस सर। ठीक है। चलो ठीक है नीरज, थोड़ा अभी पढ़ाई करो, है ना, अभी इतना स्ट्रांग नहीं है आपका स्ट्रेंथ मॉडल, और खासकर यस फॉर्मूला सर। वर्मूला तो सब बोले वाले हो, कैसे आंसर दोगे। यस सर। ओके सर। ठीक है, तो उसको पूरा लेक्चर देख डालो और एक बार देख के फिर से इंटरव्यू दो। ठीक है सर। लेकिन ढंग से पढ़ना, अच्छे से उसको पढ़ो, 2-3 थोड़ा टाइम लेके पढ़ना, यस क्योंकि सर। 5-6 घंटे का है तो लगातार तो पढ़ा होगा नहीं, आधा घंटा 20 मिनट पढ़ो, ब्रेक लो, लेकिन यस जब सर। पढ़ो तो प्रॉपर नोट्स बनाते चलो, A to Z यस सर। पता होना चाहिए, और फिर इंटरव्यू देना, फिर देखना कि कितना ड्रास्टिक चेंज आता है इंटरव्यू। यस सर। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर फॉर गिविंग योर टाइम सर।
है।